خبر آپ کو دیں کہ سندھ حکومت نے رینجرز کے خصوصی اختیارات میں مزید توسیع کر دی ہے۔ رینجرز کو پولیس کے دیے گئے اختیارات میں مزید 90 روز کی توسیع ہو گئی ہے۔ رینجرز اختیارات میں توسیع محکمہ داخلہ کی سفارش پر کی گئی۔ رینجرز اختیارات میں توسیع 4 جولائی 2019 تک کی گئی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے رینجرز کے خصوصی اختیارات میں مزید توسیع کر دی ہے، جبکہ رینجرز کو پولیس کے دیے گئے اختیارات میں مزید 90 روز کی توسیع کی گئی اور رینجرز اختیارات میں توسیع محکمہ داخلہ کی سفارش پر کی گئی۔ رینجرز اختیارات میں توسیع 4 جولائی 2019 تک کی گئی ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ایک اور ثبوت دے دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی جہاز کے ملبے سے برآمد کیے گئے میزائل سیکرز ہیڈز موجود ہیں۔ بھارتی میزائل کے ہیڈز پر نصب ریڈار بھی محفوظ ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت نے ابھی نندن والے MiG 21 کے میزائل سے F-16 کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ جب میزائل فائر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ریڈار پھٹتا ہے۔ چاروں ریڈارز کا محفوظ ہونا میزائل فائر نہ کیے جانے کا ثبوت ہے۔ بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی جہاز کے ملبے سے برآمد کیے گئے میزائل سیکرز ہیڈز موجود ہیں۔ بھارتی میزائل کے ہیڈز پر نصب ریڈار بھی مکمل محفوظ ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت نے ابھی نندن والے MiG 21 کے میزائل سے F-16 کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب میزائل فائر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ریڈار پھٹتا ہے، جبکہ چاروں ریڈارز کا محفوظ ہونا میزائل فائر نہ کیے جانے کا ثبوت ہے۔ بھارت کا پاکستانی F-16 طیارہ مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب ہو گیا۔ امریکی جریدے نے پاکستانی F-16 تعداد میں پورے ہونے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ وقت آ گیا بھارت جھوٹے دعوے اور نقصان پر سچ بولے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھارتی جھوٹ سے پردہ اٹھا دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے امریکی اہلکاروں کو F-16 طیاروں کو گننے کی پیشکش کی تھی۔ بھارت کے پاکستانی F-16 طیارے مار گرانے کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان میں موجودہ امریکی حکام نے بھارتی دعوے پر شک کا اظہار کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا کہ بھارتی حکام عالمی برادری کو 27 جنوری کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے معروف امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ ٹویٹر پر شیئر کی اور کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وقت آ گیا ہے بھارت اپنے جھوٹے دعوے پر سچ بولے اور دوسرے طیارے کے بارے میں بھی بتائے جو پاکستان نے مار گرایا تھا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ بھارت کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، خصوصاً کشمیر پر ڈھائے جانے والے مظالم پر۔ خطے کو امن اور ترقی اور خوشحالی کی ضرورت ہے۔ اور لائن آف کنٹرول پر چری کوٹ سیکٹر میں شہری آبادی پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے 4 بچوں سمیت 6 شہری زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جس میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ لائن آف کنٹرول پر چری کوٹ سیکٹر میں ایک بار پھر سے شہری آبادی کو بھارت کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ سے 4 بچوں سمیت 6 شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جبکہ بھارتی جیل میں تشدد سے جاں بحق ہونے والے پاکستانی ماہی گیر نور الامین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کراچی سے مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ بھارتی جارحیت کم نہ ہو سکی۔ بھارت کے جیل میں تشدد سے جاں بحق ہونے والے ماہی گیر نور الامین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور الامین کی اہلیہ تو غم سے اتنی نڈھال ہیں کہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں۔ نور الامین کے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کو اپنے والد کی میت پرتشدد حالت میں وصول ہوئی۔ اچانک سے خبر آئی کہ تمہارے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان کے اندر کی کچھ بھی چیز نہیں ہے، یعنی میرے ابو کو کچھ بھی چیز نہیں چھوڑا، انہوں نے سب کچھ نکالے میرے ابو کی۔
माही गे नूरुल अमीन अपने घर का वाहिद कफील था। नूरुल अमीन के अहले खाना ने हुकूमत से मदद की अपील की और कहा कि मासूम बच्चे रात की बासी रोटी खाकर पेट भर रहे हैं। मेरे वालिद साहब की ये पाकिस्तानी परचम समझो ये कफन है, उनकी आखिरी निशानी छोड़ के गया हुआ कि अब आए इमरान खान साहब कि हमें मदद करे। नमाज जनाजा में समाजी शख्सियात समेत इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। और पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में लिबिस फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 9 अफगान बाशिंदों को बाज़ेयाब करा लिया। अफगान बाशिंदे ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में लिबिस फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 9 अफगान बाशिंदों को बाज़ेयाब करा लिया है, जबकि अफगान बाशिंदे ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर खजाना असद उमर हुकूमत की मुआशी बदहाली पर होने वाली तनकीद के बाद मुतहरिक हो गए, लेकिन लगता है असद उमर को खुद समझ नहीं आ रही कि मुल्क की मुआशी हालत को बदलना कैसे है। असद उमर मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गुमगू का शिकार हैं। सुबह में कराची स्टॉक मार्केट के अरकान से खिताब में ऐलान करते हैं कि रुपए की कदर मजीद कम नहीं होगी, मगर शाम को टीवी एंकर से मुलाकात में कहते हैं कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे चुका है कि रूपी इज इन इक्विलिब्रियम। इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। आज स्टेट बैंक ही कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कोई वजह नहीं है कि अब रुपए की कोई कीमत के अंदर तो बहुत लंबी चौड़ी कमी हो। असद उमर ने डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव की बुनियादी वजह ख्याल सराइयों को करार दिया। हिसाबकार को झूठा शख्स ठहराया और धमकी दी कि जाली खबरें ना रुकी तो कानून का सहारा लेंगे। और ये एक खबर नहीं, ये रोजाना की बुनियाद पे फेक न्यूज आई जा रही है। जो बाकी कसर बची थी वो साबिक वजीर खजाना इसाक डार साहब जो है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स पे आके उन्होंने क्या किया जी कि लिख के दे दिया है IMF को कि कितने के डॉलर की कमिटमेंट होगी। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो कर रहे हैं, इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी अगर 1-2 दिन और चली ना तो फिर हमें जो है फिर कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा। वजीर मौसूम मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मनसूबाबंदी का बताने की बजाय अपनी हुकूमत और नून लीग दौर का मुआवजा करने में मसरूफ है। मुस्लिम लीग नून के वक्त में 10.1% कमी हुई और हमारे वक्त में 10.8% कमी हुई। ये जो रोज बयानात देते हैं ना, उनसे बोलें कि अपना वक्त जो है ना जरा पीछे मुड़ के देख लें। असद उमर ने ये तो बता दिया कि महंगाई में इजाफे की वजह डॉलर महंगा होना है, लेकिन ये बात गोल कर गए कि डॉलर को पर तो उनके ही दौरे हुकूमत में लगे हैं। अलबत्ता बिजली और पेट्रोल की खपत में इजाफा अपनी कामयाबी करार दे दिया। और तैयार हो जाएं क्योंकि बिजली गिरने वाली है। हुकूमत ने अवाम दुश्मन टैरिफ जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में 30 से 40% इजाफा कर दिया गया। पीक आवर्स में बिजली के झटके और भी शदीद होंगे। शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट देखिए। नेप्रा ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को नया टैरिफ भिजवा दिया है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली के बिलों में 30 से 40% तक इजाफा कर दिया गया है। मज़कूरा इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की बजाय टैरिफ को तब्दील करके किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑफ पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की कीमत 9.30 से बढ़ाकर 14.38, जबकि पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की कीमत 16.63 से बढ़ाकर 20.70 रुपए कर दी गई है। इसी तरह घरेलू सार्फिन के लिए 300 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 2 रुपए फी यूनिट इजाफा और 700 से 10 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए ऑफ पीक आवर्स में फी यूनिट 7 रुपए इजाफा, जबकि पीक आवर्स में कमर्शियल सार्फिन के लिए 6 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है। इसी तरह सनदी सेक्टर में पीक आवर्स में फी यूनिट के लिए 3 रुपए 84 पैसे फी यूनिट, जबकि पीक आवर्स 2 रुपए 74 पैसे इजाफा किया गया है। वफाकी हुकूमत ने मार्च से मई तक शाम 6 से रात 10 बजे तक पीक आवर्स मुकर्रर किए, जबकि जून से अगस्त तक शाम 7 से रात 11 बजे तक पीक आवर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने गुर्बत पर काबू पाने का नायाब नुस्खा निकाल लिया। कहते हैं दिन में 2 की बजाय 1 रोटी खाओ, दूसरे दिन 3 रोटियां खाने को मिलेंगी। पेशावर प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने कहा कि अगर एक शख्स दिन में 2 रोटियां खाता है तो वो 1 रोटी खाए। इस तरह अगले दिन वो 3 रोटियां खा सकेगा। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा।
2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकते। इस पर रेबिलन नामी एक सारिफ ने ट्विटर पर शेख रशीद की स्टेज पर बैठकर मुर्गी की रान खाने की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि शेख रशीद बाकी बोटियां अगले दिन के लंच के लिए बचा रहे हैं। एक और सारिफ अजय का कहना था कि जबरदस्त, अगर कोई शख्स रोजा रखे तो अगले दिन 4 रोटियां खा सकता है और अगर मुस्तकिल रोजे में रहे तो उसे रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। लड़की कौन है तुम्हारे साथ? खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज को 9 अप्रैल को तलब कर लिया है। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज के असासों में 2000% और सलमान शहबाज के असासों में 8500% इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा केस में नैब लाहौर ने हमजा शहबाज को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके दूसरे साहबजादे सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज को भी बुलाया गया है। नैब ने हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट हासिल कर लिए। दोनों पर इल्जाम है कि उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में 85 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग उनके करीबी साथियों फजलदाद, अब्बास और कासिम कयूम की गिरफ्तारी और बयानात की रोशनी में लगाया गया। नैब ने दोनों मुल्ज़िमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग इन अफरादी के जरिए की जाती थी। हमजा शहबाज ने 2003 में अपने असासे 2 करोड़ रुपए जाहिर किए थे। शहबाज शरीफ के वजीर आला बनने के बाद ये 41 करोड़ रुपए तक पहुँच गए। नैब जराये के मुताबिक सलमान शहबाज के असासे 3 अरब रुपए से ज्यादा हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून ने नैब के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। नून लीग की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिये में कहा गया है कि इल्जामात और नैब के गैर कानूनी रवैये पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुखालिफिन को जेलों से बचने का तरीका बता दिया। कहते हैं कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दो, जान छूट जाएगी। नून लीग का तजुर्बा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में था। 30,000 अरब कर्जे पर रोजाना 6.5 अरब सूद दे रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा, जेलों से बचना है, मुल्क का पैसा वापस करो। वज़ीर आज़म ने जमरूद जलसे में मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं जलसे जुलूसों से NRO के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। सुन लो, इमरान खान झुकने वाला नहीं। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको NRO दे दें जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को एक बार फिर लूटी रकम वापस लाने की यकीन दहानी कराई। कहा, ये हुकूमत आई ही चोरों के एहतसाब के लिए है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब थोड़े से जलसे करेंगे तो इमरान खान ब्लैकमेल हो जाएगा। मैं तो आया इस मुल्क इक़्तिदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। मेरा तो मतलब ही आने का ये है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को भी खरी खरी सुनाई। कहते हैं मौलाना साहब इलेक्शन में क्लीन बोल्ड हुए, अब उनकी बारी कभी नहीं आएगी। मौलाना फजल रहमान, मैं जरा आपको बताऊंगी क्या है। इलेक्शन में विकेट उड़ गई, इलेक्शन के अंदर क्लीन बोल्ड हो गए। वो 12th मैन बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैच ही किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दूं ताकि मेरी बारी फिर से आ जाए। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायली इलाकों में जब्बा और बाड़ा डैम बनाने का ऐलान भी किया। और खबर है मुल्तान से, जहां मेट्रो बस शहरियों के लिए खतरा बन गई। डीसी मुल्तान ने भी मेट्रो बस को गैर महफूज करार दे दिया। मेट्रो पुल से मलबा गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट 24 न्यूज़ को मिल गई। मोहसिन अल मुल्क की रिपोर्ट में जानिए। मुल्तान मेट्रो बस से मलबा गिरने की तहलका खेज तहकीकाती रिपोर्ट 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। 24 न्यूज़ ने गुज़िश्ता हफ्ते मेट्रो बस के लिए बनाए गए पुल से मलबा गिरने की खबर नाज़रीन तक पहुंचाई थी। मेट्रो पुल से मलबा एक कार पर गिरा था, जिससे कार के शीशे टूटे और छत मुतासिर हुई। इसको बंद कर देना चाहिए मेरे देखने में, या पहले से इंजीनियर को चाहिए था कि रिजेक्ट कर देता। ये जितना वाकई खतरनाक बन चुके हैं, इसको फौरन बंद कर देना चाहिए। जब तक इस पे कोई प्रॉपर इसका वे ना निकले, इसको बिल्कुल ओपन ना करे। अगर ये ऐसे चलता रहा तो बहुत सी जानी नुकसान हो सकता है। ये कल एक गाड़ी पे गिरा है तो जी पत्थर, अगर ये किसी बंदे पे गिर जाता तो जानी नुकसान होता। 24 न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया हरकत में आई और तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। जॉइंट्स को आपस में लगाया गया। जॉइंट्स को जब जोड़ते हैं, उसको कवर करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स को, तो उससे वो जो प्रॉपर जॉइंट नहीं लगाया गया।
तहकीकाती कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके बारे में डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने यह भी बता दिया कि मेट्रो मंसूबे में संगीन गफलत बरतने वाले कौन हैं। मेट्रो बस मंसूबे में होने वाली बेज़ाब्तियों की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। केपी हुकूमत ने अनोखा कारनामा कर दिखाया। पहले डीजी पीडीए खुद ही तैनात किया और फिर उसको खुद ओहदे से ही हटा दिया। नए तैनात होने वाले डीजी पीडीए इकराम उल्लाह ने नैब से प्ली बारगेनिंग में जान छुड़ाई थी, इसीलिए हटाया गया। इकराम उल्लाह ने शाम को ही चार्ज संभाला था। केपी हुकूमत की जानिब से पहले इकराम उल्लाह को खुद ही तैनात किया गया और फिर खुद ही हटा दिया गया। नए तैनात होने वाले डीजी पीडीए इकराम उल्लाह ने नैब से प्ली बारगेनिंग में अपनी जान छुड़ाई थी, इसीलिए उन्हें हटाया गया। इकराम उल्लाह ने शाम को ही चार्ज संभाला था। और दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में बगैर सर्जरी दिल के वाल्व तब्दील करने की जदीद तकनीक मुतारिफ करवा दी गई है। जी, दिल के वाल्व बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के जो है वो तब्दील करने की जो जदीद तकनीक है टेवी, इसके लिए जो है वो आज एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में और पीआईसी के डॉक्टर्स को भी इस जदीद तकनीक से मुतारफ करवाया गया है। और जो NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कराची के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी और डॉक्टर ताहिर सगीर पर मुश्तमिल टीम की जानिब से जो है वो 2 पेशेंट्स के दिल के वाल्व जो है वो बगैर सर्जरी के तब्दील किए गए पीआईसी में। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईसी प्रोफेसर नदीम याद मलिक और दीगर डॉक्टर्स जो हैं वो भी ऑन बोर्ड थे। इस टेक्निक पर ये ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है उसका मकसद ये था कि मुस्तकबिल में पीआईसी में भी बगैर सर्जरी के दिल के वाल्व तब्दील करने का जो प्रोसीजर है उसकी सहूलत फराहम की जा सके। और खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल में दिल के ऑपरेशन बंद होने का खदशा पैदा हो गया। अस्पताल में एसीटी मशीनों की कमी है, जबकि जो मशीन मौजूद है वो भी खराब है। एसीटी मशीन के बगैर ओपन हार्ट सर्जरी करना मुमकिन नहीं। इससे कबल अस्पताल में एक ही फ़ाल मशीन थी जो डॉक्टर जबरान ज़ाती तौर पर लाए थे। अस्पताल इंतज़ामिया ने डॉक्टर जबरान को सर्जरी से मना किया तो वो मशीन भी वापस ले गए। आपको बताएं कि लेडी रीडिंग अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी अब नहीं हो सकेगी। अस्पताल में एसीटी मशीनों की कमी है, जबकि जो मशीन मौजूद है वो भी खराब है। एसीटी मशीन के बगैर ओपन हार्ट सर्जरी करना मुमकिन नहीं है। इससे कबल अस्पताल में एक ही फ़ाल मशीन मौजूद थी जो डॉक्टर जबरान ज़ाती तौर पर लाए थे। अस्पताल इंतज़ामिया ने डॉक्टर जबरान को सर्जरी से मना किया तो वो यहाँ से मशीन भी वापस ले गए हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची की बात करेंगे, जहां पुलिस मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे भी जख्मी हो गए। अली रजा की रिपोर्ट में मजीद जानिए। एक और पुलिस मुकाबला और निशाना बन गए मासूम शहरी। मुलजिमों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिनकी शिनाख्त अता मोहम्मद और ताहिर के नाम से हुई। मुकाबला जारी ही था कि फायरिंग की जद में 2 मासूम बच्चे भी आ गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर सीमे जमाली के मुताबिक 10 साल उम्र के सर में और 12 साल सज्जाद की टांग में गोली लगी। उम्र की हालत तशवीशनाक है। बच्चों के अहले खाना का कहना है कि बच्चे नमाज पढ़ने गए थे, बाहर गोलियों की आवाजें आना शुरू हो गई। अभी ये कौन सा तरीका है कि पुलिस मुकाबला हो रहा है तो भाई गली कूचों में ही फायर करते जाओ? ये तो कोई तरीका नहीं है। तो गली में बच्चे, आज हमारा बच्चा है, कल आपका होगा, किसी और का होगा। पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर फरार होने में कामयाब हो गए। बच्चे किसकी गोली लगने से जख्मी हुए, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। और कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे जख्मी हो गए। शहरियों का कहना है कि एहतियाती तदाबीर न होने की वजह से कई जानें ज़ाया हो चुकी। पुलिस में तरबियत याफ्ता लोग भर्ती किए जाएं। लोगों का इस बारे में मजीद क्या कहना है, आप भी देखिए। सही कि अगला बंदा है या नहीं, उसमें कोई गलती है या नहीं, उसको वैसे ही उठा के ले गए या मार दिया, वो तो गलत चीज़ है। बच्चों को आगे पीछे देखते नहीं है, उस टाइम बहुत रश था। इस वक्त मेरा ये छोटा भाई दवाई लेके आ रहा था और इसको गोली लगी है। अभी ये कौन सा तरीका है कि पुलिस मुकाबला हो रहा है तो भाई गली कूचों में ही फायर करते जाओ? पुलिस को सोचना चाहिए कि भाई जहाँ पे पब्लिक है वहाँ पे थोड़ा ख्याल करें। भाई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मतलब लेडीज़ हैं,
थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए इनको, पुलिस वालों को, ये काम इनका गलत है। ये हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि यार कम से कम कानून नाफिज करने वाला इदारे हो या जो पुलिस वाले हो या स्पेशल वाले हो, जो भी हो, ऐसा गली में अगर चोर डाकू भाग रहे तो उसको कम से कम इतना एहतियात करना चाहिए कि फायर जो कर रहे तो कम से कम तरीके से। और कराची के शहरी अब घरों के बाहर भी महफूज नहीं। जमशेद क्वार्टर्स के इलाके में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होने लगा है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। डकैत घर के बाहर शहरी को लूट कर फरार हुए। कराची का इलाका जमशेद क्वार्टर्स है जहां पर यह वारदात की गई है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होने लगा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है और इसमें देखा जा सकता है कि डकैत घर के बाहर शहरी को लूट कर फरार हो गए। दीगर वाकयात की बात करें तो कहीं हादसे में कई जानें मौत के मुंह में चली गईं तो कहीं सफाक कातिल लहू की नदियां बहाते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। खौफनाक हादसे में कई जानें चली गईं। खजदार में वट के करीब कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच और डंपर में तसादुम में 7 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। हादसे में 21 अफराद भी जख्मी हुए। 2 जिंदगियां गैरत की भीख चढ़ गई। बनवाखिल में कारोकारी के इल्जाम में एक खातून और एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। अनीला को उसके बाप ने कत्ल करने के बाद इलाके के नौजवान साजिद को भी मार डाला। बिरेना दुश्मनी 3 लोगों की जान ले गई और बाड़ों में शर और सिल्वर बरादरी के दरमियान तसादुम में 3 अफराद जान बहक, 1 जख्मी हो गया। दोनों ग्रुप्स में 8 दिन से वक्फे से लड़ाई जारी है। तोलीन की लाशें सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया गया। पतंगबाजी पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। खूनी खेल ने फिर एक नन्ही जान ले ली। लाहौर के इलाके शादरा बूटा पास में पतंग पकड़ते 2 बच्चों को करंट लग गया। करंट लगने से एक बच्चा जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਚੜਿਆ ਗੁੱਡੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕਰੰਟ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਪਿਆ। एक और हलवा की बेटी जो उनका निशाना बन गई। लियाकतपुर में मुबैना तौर पर ससुर ने घरेलू नाचाकी पर बहू को आग लगा दी। 24 साल खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पेशावर की जिला इंतजामिया ने बहरी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 60 से ज्यादा धड़ों को मिसमार कर दिया। ऑपरेशन में महकमा औकाफ, टाउन व पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने हिस्सा लिया। और लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में मकान के तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। बेटी हिना ने वालिदा फौजिया पर जालसाजी से घर हथियाने का इल्जाम आयद कर दिया है। पहले मेरी बेटी ने मुझे मारा, फिर ये आमिर ने मुझे जोर से पटाखा। उस गार्ड ने मुझे थ्रेट किया, मुझे गन दिखाई, मेरी शर्ट फाड़ी। लाहौर में खावंद और दीगर अफराद के साथ मिलकर वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाने के केस में नया मोड़ आ गया। बेटी ने वालिदा पर घर पे कब्जा करने का इल्जाम लगा दिया और ये इन्होंने 2 नंबर करवाया इंतकाल, विरासती इंतकाल। जाली पावर ऑफ अटर्नी जो मैंने नहीं साइन की, इन्होंने साइन कराने की कोशिश की है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू मेरे फादर के सारे एसेट्स अपने नाम कर लिए थे, बेवा अपने आप को प्रूव करके। हिना का कहना था कि पुलिस और FIA में दरखास्त दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं सुनवाई ना हुई तो वकील आमिर गुजर से मदद की दरखास्त की। मंडे को मैंने एक पुलिस में कंप्लेन की है जिसका अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। खातून ने वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुक्काम से इंसाफ दिलाने की अपील की और कहा कि उसके वालिद ने वालिदा फौजिया को तलाक दे रखी थी। वालिदा फौजिया की तमाम जालसाजियों के सबूत मौजूद हैं जो मुहैया करूंगी।